1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, हिब्रूज 2 चैप्टर, जरमिया 36 चैप्टर, 37 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, इब्रानी की पत्री 2 अध्याय, जरमिया 36 से 37, 36 अध्याय 37 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, इब्रानी में पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पवित्र आत्मा आपके हाथ में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आपके अलावा कौन है पिता जो ऐसी महान बातों को हम तक पहुंचा पाए। I love you Father, I love you Holy Spirit, I love you Yahweh, I love you Jesus। आपके अलावा कौन इतनी सुंदर अवस्थाओं को हमारे तक पहुंचा पाएगा। पवित्र आत्मा, इस वचन के सारे रहस्य अच्छी तरह से हम समझ पाए, ऐसा अनुग्रह करो हम पर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हम विनती करते हम वचन सुनने वाले ना रहे, और केवल सुनने वाले नहीं, हम उसे करने वाले बने, ऐसा अनुग्रह दीजिए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। से हम पढ़ेंगे हिब्रूज चैप्टर 2 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे हम। Dominion of the world given unto Christ, first verse. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost, according to his own will. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels, that thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels of the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which God hath given me, for as much then as the children are partakers of
flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy, hallelujah, him that had the power of death, that is the devil. ये वचन को याद रखना, 14 वचन को, बाद में हिंदी में मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For verily he took not on him that the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. हम हिंदी में इन्हीं इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा. हमारा उद्धारकर्ता 5 वचन से आगे, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है. तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया. हालेलुया. ये ध्यान रखिए, उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार. उसके हाथों के काम क्या है? ये सृष्टि उसके हाथों के काम है. ओके, उस पर अधिकार है. यीशु मसीह को अधिकार है, ध्यान रखिए इसको. ओके, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया. कुछ भी आपके विरोध नहीं जा सकता है. सब कुछ के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है. सब कुछ को यीशु मसीह का डर रखना ही रखना है. वो उस परमेश्वर का बेटा है जिसने सारी सृष्टि का अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है. हालेलुया. इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो. पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते. ये एक अंडरलाइन करने वाला समय है कि अब तक कुछ ऐसा है और भी बाकी जो अभी तक अधीन नहीं देख रहे हम. ओके, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे. ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ आप याद रखना है. 9 वचन जिसके अंदर आप बैठते हैं. ओके, प्रभु भोज के समय ये वचन को याद करके बोलना है. 10 वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे. क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता. हालेलुया. तो एक मूल के है तो आप भाई बहन कहिए. अगर मसीह के अंदर नए जन्म पाए हुए नहीं है तो आप उनको भाई बहन कह के, भाई बहन शारीरिक तौर पे बन सकते हैं, लेकिन आत्मा के तौर से आप उनके भाई बहन नहीं हो सकते हैं. ओके,
वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। 14 वचन 15 वचन ज़रूरी था, मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला। ये है, आप जब हो कम्युनियन लेते हैं तो 9, 14, 15 बोलना ज़रूरी है। देखिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उसके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ओके, ये है आपकी ताकत का निशाना। हाँ, प्रभु भोज लेते समय 15 वचन, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, और उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि देखो 15 वचन का अर्थ क्या है, हम छुड़ा लिए जाते हैं प्रभु भोज लेते समय, याद करते हैं कि हम छुड़ाए हुए लोगों में गिनती है। ओके, 16 वचन, क्योंकि वह तो स्वर्ग दूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हालेलुया, तो हमें वो संभाल रहे हैं, अब्राहम के वंश है हम। ओके, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। जिससे, भाई कौन है पता है? यीशु मसीह किसको कह रहा है? स्वर्ग दूतों को कह रहा है वो। ओके, और स्वर्ग दूतों के साथ साथ अब उसने क्या बोला? जो मेरे मांस और लहू के साथ सहभागी होते हैं वो मेरे भाई बंधु है। ओके, वो एक मूल में जन्मे हुए हैं, वो मेरे भाई बंधु है। ओके, के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक के बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ये सब वचनों को आपने प्रभु भोज लेते समय बोलना है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम बोलते हैं ना, हम शरीर में है तो दुख है, कष्ट है, परेशानियां है, तो इसका जवाब प्रभु भोज में ये बोलने से हमको मिलता है। हमारे लिए परमेश्वर ने ये प्रभु भोज का समय का वचन दिया हुआ है, उसको याद करके बोलेंगे तो परमेश्वर उस अवस्था की, हमारे अंदर की अवस्था की सुध ही लेता है। ओके, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, हमें ईश्वरीय रचना में लाने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, नासरी यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।